Good morning, students. How are you all? I hope you all will be fine. So, in the previous lecture, we have read about this chapter, the fun they had. This chapter tells about the digital classes, online classes, how the students are taking the classes. Okay. So, as what we are doing, you know. So, that is the story. Before start anything else, I want to tell you about the two characters, Margie and Tommy. Margie is the main character of the story. She is a girl of 11 years of the age. Okay. She writes a diary on the night of 17th May. Right now we are living in 2018. She is writing this. The story is set in the future. It is a set in the year. So almost 1.5 century, that is 140 years before from now. Okay, the story tells us before 140 years. 140 साल पुरानी टाइम की बात हो रही है. At that time, Margie writes an entry in her diary and she writes that Tommy found a real book and she is feeling so strange because in her times real books do not exist. They only have e-books, virtual books. So books in the format of print on paper are extinct and so on. Margie is astonished to see a real book. Okay, well, this book is a very old book. Margie's grandfather once said that when he was just a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper. When all the stories were printed on paper. Margie is reminded of her grandfather. He told her that his grandfather studied all the books that were printed on paper. So this kind of a book is historical or ancient, you can say. बहुत ज़्यादा पुरानी, जिसको बोलते हैं ना हिस्टोरिकल, जिसमें काफ़ी कुछ पुरानी पुरानी बातें लिखी होती हैं. सो दिस बुक इज़ ऑल अबाउट समथिंग विच दे कैन नॉट बिलीव, दे कैन नॉट इमेजिन. अब वो तो बच्चे हैं, 11 और 13 साल के किड्स हैं, वो उनको नहीं पता, तो उनके लिए ये सब चीज़ें स्ट्रेंज हैं, उनको नहीं समझ आएगी वो चीज़. उनके लिए ये चीज़ एक हंसी मजाक के लिए, क्योंकि वो चीज़ वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा कुछ भी होता था. बट नाउ जैसे वो बुक को पढ़ते हैं, टॉमी उस बुक को जब फाइंड आउट करता है, उसको देखता है, ठीक है. एज दे टर्न द पेजेस वर येलो एंड क्रिंकली, फटे फटे, जैसे कटे फटे होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा पुरानी सी बुक होती है तो बहुत पेजेस लाइक क्रिंकली होते हैं, कटे फटे वैसे. सो इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And Margie is talking about the book that Tommy had found. Margie talking about the book that Tommy had already found, you know. She says that the pages of the book had turned yellow and they had been crushed. As it was a very old, the children found it very funny to read the words which stood still. कि अभी भी वो एग्जिस्ट कर रही हैं, ऐसे वर्ड्स अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, ऐसी बुक्स अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं. एज द वर्ड्स वर प्रिंटेड ऑन द पेजेस दे डिड नॉट मूव, वो मूव भी नहीं कर पा रहे. ऑन द अदर हैंड द बुक्स दैट मार्गी एंड टॉमी रेड वर ऑनलाइन, ई बुक्स. Like we people learn from the books, not even from the books, from e-books, from textbook, also from internet, from anything else. Okay, now the study is very digital. We can learn from anything else, not from the schools, not from the colleges, not from the classroom. Okay, we take the classes online, we take the classes from internet, so and so. So as they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it in the first time. It was a very strange experience for these children. ये बहुत ही strange experience था जब उन्होंने बुक खोली, उसके पेजेस देखे कटे फटे, और मतलब इतनी एक जैसे होता है ना, जैसे बुक हमारी बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, रद्दी में दे देते हैं, उसको थ्रो कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे किसी काम की नहीं होती. लेकिन फिर भी उसके ग्रैंडफादर ने वो चीज़ संभाल के रखी हुई थी, वो बहुत साल पुरानी थी, तो उन बच्चों को वो चीज़ देख के थोड़ा वियर्ड लग रहा है. When you have a book which is printed on paper, whenever you flip the pages, you to get to see the same thing written on the pages. On the other hand, an e-book text keeps on the changing on the screen. The screen is the same, but you have the same screen in front of you.
but the text keeps on changing, so whenever you go back the text is different. Okay, so Tommy said, what a waste, क्या बकवास है, क्या वेस्ट है. When you are through the books, when you are through with the book, you just throw it away, I guess. कहता है इस बुक को हमें फेंक देना चाहिए, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई नीड नहीं है. टॉमी को पहले ऐसा लग रहा है. अ टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट. कहता हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे हमें बहुत सारी बुक्स अवेलेबल मिल जाएंगी, हमें क्या ज़रूरत है इस बुक को उठाने की, पढ़ने की, देखने की. तो उनके लिए ये वेस्ट है. ओके, सो उन्होंने ये सोचा कि हमें इसको थ्रो कर देना चाहिए. बस टॉमी डिसलाइक द प्रिंटेड बुक्स. सेम विद मार्गी. मार्गी इज़ अ गर्ल, शी डजंट लाइक to go to school, she doesn't like to study, she doesn't like to take the books, read the books. So she was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. Margie was 11 and he was 13. Margie agreed with Tommy's opinion. Margie was 11 years of age and she has not read as many books as Tommy had, because Tommy was older to Margie na, so he was that. She said, where did you find it? तुमने कहाँ से ढूंढी? मार्गी ने रिप्लाई किया. ठीक है, मार्गी asked Tommy that where had he found the printed book. In my house, he pointed without looking, because he was very busy reading, you know. Tommy replied to Margie that he found the printed book in the storeroom of his house and he was so busy reading the book that he did not remove his glance from the book. Margie is asking what the book is about. ये बुक है किस चीज़ के बारे में, मुझे ये तो बता दो. मार्गी पूछ रही है उससे कि तुम ये बुक फाइंड तो करके लेके आए हो स्टोर रूम से, ये बुक किसके बारे में है, व्हाट इज़ द बुक इज़ ऑल अबाउट. टॉमी रिप्लाइड द बुक was about school, about going to school, about the life at school. Margie was scornful, जैसे मुँह सा बनाते हैं ना वैसा. School, where there to write about school? I hate school. जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, Margie doesn't like the schools, you know. So she is just making the faces and she is saying I hate school. मुझे school नहीं पसंद. Margie hated the school, the word school, and so she said that what was there to write about it in the entire book and had been written about school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. अब तो उसे वो बुक देख के और भी ज़्यादा नफ़रत होने लगी है. Just because of his mechanical teacher. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse. उसने बहुत गलत I mean to say बहुत ही worse performance दी, that's why. And the worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the inspector. Okay, that inspector was not a police inspector, that was just you can say her mother has called the country inspector so that she should take the interest in the studies and she can study the hard. Okay, that was the reason behind that why she had called. So he was a round little boy with a red face and a whole box of tools with dials and wires. The country inspector came to check the mechanical teacher. Actually, he came to check the mechanical teacher. He was a round little man and had a red face. He was carrying a big box full of tools with dials and wires. So मार्गी को दिखाने के लिए था कि ये जो टीचर आया है, कंट्री इंस्पेक्टर आया है, ये मैकेनिकल टीचर को ठीक करने आया है, क्योंकि मैकेनिकल टीचर के ऊपर गुस्सा था ना मार्गी को कि इसने मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं बनाई, क्योंकि मार्गी खुद अच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन उसको ये लग रहा था कि मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं ज्योग्राफी पढ़नी, मुझे नहीं पसंद है पढ़ाई करना, मुझे ये सब नहीं पसंद. तो उसको ये था कि मैकेनिकल टीचर को उसकी मम्मा ने बोला कि ठीक है, मैकेनिकल टीचर तुझे पसंद नहीं है तो मैं कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाती हूँ. जैसे बच्चों को हम कह देते हैं ना, हाँ पुलिस आएगी ऐसा ऐसा करके, तो वो बुला लेते हैं, इंस्पेक्टर को बुला लेते हैं, कंट्री इंस्पेक्टर को. वो उसकी मम्मी बुलाती है कि मैं उसको ठीक करवा दूँगी ताकि तुझे दोबारा वो परेशान नहीं करेंगे. दैट वॉज द रीज़न. ओके, दैट वॉज द रीज़न. हर मदर वॉज प्रिटेंडिंग बिकॉज शी वॉज जस्ट लाइक अ किड ना. सो वो अपनी पूरी वायर्स और डायर्स ये सब लेके आया है. तो उसकी मार्गी को लग रहा है कि अभी इसको अच्छे से अंदर जाके पिटाई होएगी, ठीक है, इसको थप्पड़ थप्पड़ पड़ेंगे और ये सुधर जाएगा, मैकेनिकल टीचर सुधर जाएगा और ये मेरी परफॉर्मेंस अब अच्छी लगाएगा, मुझे डांटेगा नहीं, पीटेगा नहीं और मेरे मार्क्स भी अच्छे लगा देगा. सो दैट वाज द रीज़न.
सो दिस मैन ओपन द मशीन, जैसे उसने मशीन ओपन करी, ही वॉज देयर टू रिपेयर द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर को रिपेयर करने के लिए आया. मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, but he knew how. All right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on, which all the lessons were shown and the questions were asked. Once he had opened the computer, Margie wished that he would be unable to close it back, because she did not like the computer, she did not like to study from this teacher. But the man was an expert, and within an hour he had repaired the computer and he had closed it and made it ready to teach Margie once again. Are you getting the story? स्टोरी को गेट कर पा रहे हो आप? मार्गी को लग रहा है कि जो कंप्यूटर है उसमें मैकेनिकल टीचर, क्योंकि वो तो पढ़ती ही ऐसे ही है ना, कंप्यूटर्स पे पढ़ती है, तो उसको लगता है कि कंप्यूटर में बैठा जो मैकेनिकल टीचर है वो मेरे को मार्क्स अच्छे नहीं दे रहा. अगर आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करोगे तो मार्क्स तो वहीं से आएंगे ना, जैसे आपकी परफॉर्मेंस होएगी वैसे आपके मार्क्स आएंगे. तो उसको ये लग रहा है. तो एज आई एम सेइंग कि हर मदर वॉज प्रटेंडिंग लाइक, तो जो इंस्पेक्टर आता है, कंट्री इंस्पेक्टर आता है, वो जैसे ही अंदर जाता है, टूल्स वगैरह अपने लेता है, कंप्यूटर को ठीक करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उसको लगता है कि अब मेरा टीचर भी ठीक हो जाएगा. क्योंकि बच्चे के दिमाग में जो एक वो होती है ना, एक माइंड सेट होता है बच्चे का, ये हम उसके अकॉर्डिंग स्टोरी क्रिएट की गई है, ठीक है, इस चैप्टर की स्टोरी उसके अकॉर्डिंग क्रिएट की है, समझो बात को. सो दिस वॉज दैट. So when he opened the computer, Margie wished that he would be unable to close it back, because she does not like to study. उसको पसंद ही नहीं है ये सब चीज़ें, है ना, बार बार ये. So Margie gives a description of the computer. She feels that it's a very huge. It is a black in color and she dislikes its appearance. It is a black screen. All the lessons appear on the screen and many questions are asked on the same screen which are difficult for Margie. So that was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. Margie hated this mechanical teacher the most because she had to submit her homework and test papers to it. Of course, अगर वो पढ़ रही है, कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ रही है, डिजिटल स्टडीज़ ले रही है, ठीक है, मैकेनिकल टीचर से, तो एज शी सबमिट हर होमवर्क एंड गेट द टेस्ट पेपर्स एंड ऑल्सो get the results, so she is not getting the good marks. So this is the reason why she is sad. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, जब वो 6 साल की थी तब से. And the mechanical teacher calculate the marks in no time. टाइम तो लेते ही नहीं है, कंप्यूटर में कहाँ टाइम लगता है. आपने 1 सेकेंड अंदर जैसे क्वेश्चन पेपर डाला वैसे आपके मार्क्स आ जाएंगे, क्या ज़रूरत पड़ती है ना, इतना तो टाइम लगता भी नहीं है. सो उसके बाद मार्गी हैड टू राइट हर होमवर्क एंड हर टेस्ट पेपर्स इन अ पर्टिकुलर पंच कोड दैट इन अ कंप्यूटिंग लैंग्वेज. शी हैड लर्न द लैंग्वेज एट द एज ऑफ 6. उसने लैंग्वेज को लर्न करना 6 साल की उम्र में सीख लिया था. द मशीन चेक द पेपर्स एंड कैलकुलेटेड हर मार्क्स इन अ फ्यू सेकेंड्स. नाउ द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड. ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. कहता ये बच्ची की गलती नहीं है, Mrs. Jones, I think the geography sector was geared a little too quick. कहता ये बच्ची की गलती नहीं है, शायद जोग्राफी का जो सेक्टर है वो ही बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है, फास्ट ग्रो करता है. सो द कंट्री इंस्पेक्टर सेड दैट मार्गी वॉज गेटिंग बैड मार्क्स इन जोग्राफी बिकॉज द मशीन वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. इट वॉज गियर्ड टू अ हायर लेवल. ठीक है, जैसे लेवल्स होते हैं ना, अगर आप देखते होगे जैसे हमारे फ़ोन्स में, ऐप्स में काफ़ी, अगर हमने ऑनलाइन टेस्ट देने होते हैं तो वो अलग अलग स्टेप्स होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं. पहले लेवल 1 होता है, उसमें थोड़ा सा इजी होएगा, फिर जो लेवल 2 होएगा वो फर्स्ट से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, फिर जो थर्ड होएगा वो सेकंड से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट. तो ऐसे लेवल्स होते हैं. तो उसने वही चीज़ बोली है कि इसकी बच्चे की गलती नहीं है. जोग्राफी का जो सेक्टर है, जो जोग्राफी का पार्ट है, उसमें ये हायर लेवल अपने आप तक पहुँच. अब उसका लेवल क्या है, वो तो बच्ची है, उसके लेवल के क्वेश्चंस उसको मिलते नहीं है. जोग्राफी में उसको हायर लेवल की स्टडी जब मिल जाए तो उसके मार्क्स तो आएंगे नहीं. उसने ये रीज़न बोला कि बच्ची की गलती नहीं है, कि कंप्यूटर की गलती है, इसीलिए अब मैंने उसको ठीक कर दिया है. ठीक है, अब ऐसा कुछ होगा नहीं. सो दीज थिंग्स आर हैपन समटाइम्स. आई हैव स्लोड इट अप एट अ वेरी एन एवरेज 10 ईयर लेवल. ठीक है, 10 साल के बच्चे के लिए जो ज़रूरी होता है. अकॉर्डिंग टू दैट ही सेड दैट समटाइम्स मशीन्स malfunctioned and that is what had happened. It had slow it down. कभी कभी
धीरे हो जाना, कभी कभी धीरे धीरे होके आगे आगे बढ़ना, समझ रहे हो बात को। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। उसके कहने का मतलब था कि अगर हम इसका बच्ची का पूरा ओवरऑल देखें ना, ओवरऑल एक्सपीरियंस देखें, ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस देखें तो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, इतने भी बुरे मार्क्स नहीं है। एंड ही पैटेड मार्गीज head again. He said that the Margi was learning at a good pace. He again patted Margi's head in order to cheer her up. दिस इज़ द काइंड ऑफ मोटिवेशन। अगर किसी बच्चे के चलो मार्क्स कम आ भी रहे हैं तो टीचर जो है, टीचर का काम क्या होता है, उस बच्चे को ये थोड़ी कहना कि तेरे तो मार्क्स इतने कम आया है तो पढ़ नहीं सकता,